بی بی صاحبہ کہاں پر ہیں؟ وہ ابھی حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اس نے جمال کو کال ملائی اور اس سے ماریا کے بارے میں پوچھا۔ صاحب جی وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ کیا اس نے دوبارہ کوئی ہنگامہ نہیں کیا؟ جمال ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، اگلے ہی لمحے خود پر قابو پاتے بولا، نہیں صاحب جی، مجھے کمرے کے اندر سے کوئی آواز سنائی نہیں دی، میں خود بھی حیران ہوں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ اس کے لبوں پر ایک بہت پیاری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اسد خان، تمہاری بیٹی تو میری سوچ سے بھی زیادہ معصوم ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا وہ تم سے بھی زیادہ بڑی ڈرامے باز ہوگی، لیکن اس نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں فی الحال ماریا کا جو عکس تھا وہ ایک بہت ہی معصوم لڑکی کا تھا، مگر وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ جو نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، اور ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے لاک کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ لائٹ بند تھی، چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ٹھیک طرح سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اس نے لائٹ آن کی اور سامنے کا منظر دیکھا، اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کی سب سے خاص اور سب سے قیمتی پینٹنگ جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے 3 سال لگا دیے تھے، اور جس مصور کی یہ پینٹنگ تھی اس کے پیچھے وہ برسوں خوار ہوتا رہا تھا، وہ اس وقت زمین بوس تھی۔ فریم ٹوٹا پڑا تھا اور اس کے اوپر مختلف پینسلز اور مارکرز سے عجیب و غریب قسم کے نمونے بنائے گئے تھے، جبکہ اس کی زوجہ محترمہ تھوڑے ہی فاصلے پر پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، تو اسی لیے ماریا نے اس سے کلرز کی بات کی تھی۔ پچھلی رات جب ماریا نے اس سے کہا کہ اسے مارکرز پینسلز کی ضرورت ہے تو وہ تھوڑا سا حیران ہو گیا اور سوچنے لگا آخر وہ ان چیزوں کا کیا کرے گی، یہ تو چھوٹے بچوں کی چیزیں ہیں۔ مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے جمال کو حکم دیا کہ جیسا بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں ویسا ہی کرو۔ اب اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے بستر پر اٹھا کر بٹھا دیا۔ وہ جو اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، خالی خالی نظروں سے سامنے کھڑے اس جلاد کی طرف دیکھنے لگی جس نے پچھلے 12 دنوں سے اس کو اس جگہ کا قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس انسان کو آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت ہی خوبصورت اور وجیح تھا، کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، لیکن وہ ماریا خانزادہ کے لیے ایک خوفناک حقیقت سے کم نہیں تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری پینٹنگ کو ہاتھ لگانے کی؟ اس کی بات سن کر ماریا نے بے ساختہ اپنی جمائی روکی اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے میری اجازت کے بغیر یہاں پر لانے کی؟ وہ اس سے واقعی امپریس ہوا تھا۔ 12 دنوں کے بعد اس نے اپنی زبان کھولی تھی اور وہ واقعی اب انسپیکٹر کی ہی بیٹی لگ رہی تھی۔ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، جس مقصد کے لیے میں تمہیں یہاں پر لایا ہوں وہ مقصد تو ابھی ادھورا ہے۔ سوچ رہا ہوں آج سزا کے طور پر وہ مقصد بھی پورا کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ ماریا یکدم گھبرا گئی، اس کی سانسیں بری طرح پھول گئی تھی۔ اس نے تیمور کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کی طرف ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت بھاری تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہ سکی۔ پلیز دور ہو جاؤ، مجھے تم سے کراہیت محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ تیمور کا نارمل غصہ ایک دم پھر سے تیز ہو گیا۔ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہاری حیثیت ہی ہے کیا ایک 2 کوڑی کی عورت کی؟ اگر میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں 2 ٹکے کا کر دوں۔ ایک تو میں تم پر احسان کر رہا ہوں، تمہیں یہاں پر عزت سے رکھا ہوا ہے، ورنہ جو غلطی تمہارے باپ نے کی ہے اس کے بدلے تو مجھے تمہیں جان سے مار کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دینا چاہیے تھا جہاں سے تمہارا نام و نشان تک نہ ملے۔ وہ حلق کے بل چلا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا، وہ کوئی شیطان معلوم ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ماریا کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا۔ پچھلے 12 دن وہ خود کو یہی سمجھاتی آئی تھی کہ اب وہ اس کے سامنے نرم نہیں پڑے گی، وہ اس کے سامنے آنسو نہیں بہائے گی، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گی، مگر تیمور کے غصے کے سامنے وہ پھر سے بے بس ہو گئی۔
وہ اس کا ہاتھ پکڑ اسے کھینچتا ہوا زمین پر پڑی اس پینٹنگ کے قریب لے کر گیا۔ تمہیں پتا بھی ہے یہ پینٹنگ کتنے کی ہے؟ اس کی بات سن کر وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ 8 کروڑ کی ہے یہ پینٹنگ۔ جہاں تک میرا خیال ہے تم نے اتنے پیسے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس نے واقعی اتنی بڑی رقم نہیں دیکھی تھی، بلکہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ معمولی سی پینٹنگ اتنی مہنگی ہوگی۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مصوری اور پینٹنگز کا کتنا بڑا دیوانہ ہے۔ ماریا بیگم، اب تم خود ہی یہ سارے پیسے پورے کرو گی۔ اب تو مجھے 8 کروڑ لا کر دو گی۔ چلو میں تمہارے لیے ایک اور کام آسان کر دیتا ہوں۔ جس دن تم اس پینٹنگ کے پیسے پورے کرنے میں کامیاب ہو گئی، اس دن تم یہاں سے جا سکتی ہو، مگر اس سے پہلے تم میرے پاس رہو گی۔ اگر تم اس حویلی سے باہر ایک قدم بھی نکالنے کی کوشش کرو گی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری ساری نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تم لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹ چھین لوں گا اور تم لوگوں کا وہ حشر کروں گا کہ پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن کر رہ جاؤ گے۔ ماریا کی حالت ایسی تھی جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور اب اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا، بس آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میں اتنے سارے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم نے میری پینٹنگ خراب کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ مجھے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ میں یہ پیسے کیسے کما سکتی ہوں؟ کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسا کام کر سکتی ہوں جس کے بعد میری یہ غلطی معاف ہو جائے؟ وہ جلدی سے اس کے سامنے آ گئی اور اپنے آنسو صاف کرتے اسے پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ لڑکی جو اسے آنکھیں دکھا رہی تھی اب اس کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک تیمور کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتی تھی، اب خود اس کے سامنے کسی کٹ پتلی کی طرح پیش ہو رہی تھی۔ تمہیں میرا غلام بننا ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے حیرانگی سے تیمور کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مطلب صاف ہے، میں تمہیں جو کہوں گا تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہوگا، اور جس دن تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اس دن تمہاری سزا نئے اندازے سے شروع ہو جائے گی۔ تمہیں میرے ساتھ تقریباً 1 سال کا وقت گزارنا ہوگا، اور اس 1 سال میں تمہیں ہر وہ کام کرنا ہوگا جس کے لیے تمہیں میں کہوں گا۔ کیا آپ مجھے اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے حیرت اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچتے بولا، ہاں بالکل میری جان، میں تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دوں اور آپ کو یہ بول دوں کہ آپ بے شک میرے خاندان کو تباہ کر دیں۔ وہ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری ایک چھوٹی بہن بھی ہے جو تقریباً 14 سال کی ہے، اور وہ تم جیسی ہی خوبصورت ہے۔ کیا تم یہ چاہو گی کہ میں تمہاری چھوٹی بہن کے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا وہ تیزی سے بول پڑی، نہیں پلیز، خدا کے لیے ایسا کچھ نہ کیجیے گا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ دیٹس لائک مائی گڈ گرل۔ یہ کہہ کر اس نے ماریا کے بالوں کو بکھیرا۔ وہ جس تیزی سے کمرے کے اندر آیا تھا اتنی ہی تیزی سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے رب سے فریادیں کرنے لگی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ 16 سال کی ایک چھوٹی سی لڑکی جس کے اپنے بہت سے خواب تھے اور جس نے ان خوابوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا تھا، وہ ایک جلاد کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ آدمی اسے تقریباً 12 یا 13 سال بڑا لگتا تھا۔ میں اتنے سارے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ وہ ذہنی انداز میں اپنے بالوں کو کھینچنے لگی۔ اس کا بابا ایک ایماندار پولیس والا تھا، اسی لیے اس نے ایک مڈل کلاس فیملی میں آنکھ کھولی تھی جہاں پر بمشکل اس کی ضروریات پوری ہوتی تھیں۔ فی الحال وہ جس محل نما حویلی میں موجود تھے، اس نے آج تک اس کا کبھی خواب تک نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اسے ان ساری چیزوں کی خواہش تھی۔ اس کا اس قید میں دم گھٹ رہا تھا، اور اب اس نے جو ایک اور بڑی غلطی کر دی تھی اس کا خمیازہ تو اب اسے بھگتنا ہی تھا۔ کیا وہ میرے ساتھ زبردستی کرے گا؟ بے ساختہ اس کے ذہن میں خیال آیا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو میرے ساتھ پہلے ہی کر دیتا۔ جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے پھر سے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔
आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। आखिरकार वो अपना सर दोनों हाथों में गिराकर वहीं जमीन पर लेटकर सिसकने लगी। तैमूर, जो कि अपने कमरे में बैठा, मारिया के कमरे में लगे कैमरे में उसके कमरे में चलने वाला हाल देख रहा था। उस लड़की को रोते देखकर इसका दिल एक लम्हे के लिए तेजी से धड़का, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने आप को फिर से पत्थर का बना लिया। वो इतना कमजोर नहीं था कि इस लड़की के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता, और ना ही वो खुद को उसके सामने कमजोर जाहिर करना चाहता था। वो अंडरवर्ल्ड डॉन था और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो कैसे एक छोटी सी लड़की के सामने बेबस हो सकता था? उसने जैसे खुद को याद करवाया और लैपटॉप जोर से बंद कर दिया। जमाल, जो कि थोड़े ही फासले पर खड़ा अपने साहब की हालत देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रहा था, फौरन से बोल पड़ा, साहब, क्या मेरे लायक कोई काम है? नहीं, तुम फिलहाल यहां से जाओ। जब तुम्हारे लिए काम होगा तो तुम्हें बुला लूंगा, उसने बेजारियत से कहा। फिलहाल उसका किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। साहब जी, अगर आप कहें तो हम इंस्पेक्टर असद को कॉल मिलाकर उन्हें बता सकते हैं कि उनकी बेटी हमारे पास है। उसके बाद हम उनसे अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। जमाल अब की बार थोड़ा सा सीरियस हुआ। तैमूर हत्थे से ही उखड़ गया। खबरदार, जो किसी ने उस इंसान को कॉल मिलाई, मैं उसकी जान ले लूंगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि वो लड़की मेरे पास है। मगर साहब, उसको अगवा करने के पीछे रीजन यही थी कि हम उसके बाप से अपने काम निकलवाएंगे। तुम बॉस हो या मैं? वो खूनख्वार नजरों से उसकी आंखों में देख रहा था। जमाल ने बेसाख्ता अपनी नजरें झुकाईं। उसके लबों पर अभी भी मुस्कुराहट थी। उसने जिस चीज को कंफर्म करना था वो कंफर्म हो चुकी थी। उसका साहब एक 16 साल लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। वो इंसान जो कहता था कि उसे कोई चीज हरा नहीं सकती और कोई उसकी कमजोरी नहीं है, आज वो एक लड़की के हाथों बेबस होता नजर आ रहा था। जी साहब जी, आप ही मेरे बॉस हैं और अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ये कहकर उसने अपनी गर्दन झुकाई और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन तैमूर ने अपने घर में मुख्तलिफ लोगों की एक मीटिंग रखी थी, जिसमें से कुछ गैंगस्टर्स भी थे और कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। वो सारे ही गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे और उनका हेड तैमूर था। ये मीटिंग घर के बेसमेंट में रखी गई थी। किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी। मारिया, जो कि आधी रात के वक्त किचन में पानी पीने गई, उसने तैमूर की बातें सुन ली थी। अब उसके अंदर एक बार फिर से तजस्सुस भर गया था। वो देखना चाहती थी कि आखिर ये किस तरह की मीटिंग है और यहां पर क्या होगा। दिन 12 बजे का वक्त था। वो उन लोगों से बैठा गुफ्तगू कर रहा था जब मारिया ने बहुत ही मोहतात अंदाज में बेसमेंट में कदम रखा। सामने ही एक गार्ड खड़ा था। वो गर्दन अकड़ाती उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। बेगम साहिबा को देखकर वो घबरा गया। आप यहां से चली जाएं, यहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। होश में तो हो? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारे साहब की मोहब्बत हूं? अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। ये वही गार्ड था जिसके दोस्त ने मारिया पर हाथ उठाया था और फिर उसका जो हाल तैमूर ने किया था, उसके बाद वो भी खबरदार हो गया। बेगम साहिबा, खुदा के लिए साहब को शिकायत ना लगाइएगा। दरअसल साहब ने कहा है कि यहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं। वो बाहर से आने वाले लोगों की बात कर रहे थे। मैं इस हवेली में ही रहती हूं और कल साहब से इसी सिलसिले में मेरी बात हुई थी। चलो अब जल्दी से सामने से हटो। वो उस पर रोब जमा रही थी। ना चाहते हुए भी वो हट गया। मारिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से लॉक था। उसने गार्ड को दोबारा से आवाज दी, ये दरवाजा खोलो। वो उसी फर्मा बरदारी के साथ पलटा और तेजी से वो दरवाजा खोल दिया। चलो अब तुम यहां से जाओ और ये चाबी मेरे हवाले करो। मारिया उसे वहां से भेज चुकी थी। उसने हल्का सा दरवाजा खोला। तैमूर की नजर बेसाख्ता उस दरवाजे पर पड़ी, जो हद से ज्यादा शातिर और चालाक इंसान था, जो कि उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेता था। अगर कहीं पर भी जरा सी कोई गैर मामूली सरगर्मी होती थी तो उसे फौरन से पता चल जाता था। वो इसी सोच में था कि गार्ड का इस कमरे में क्या काम,
इससे पहले कि वो वहां पर जाता, अकराम खान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने लड़कियों के ट्रक को तैयार कर दिया है। अब तुमने किसी तरह से पुलिस को अपने साथ में लाना है ताकि वो ट्रक मैं दूसरे मुल्क भेज सकूं। अकराम साहब की बात सुनकर उसने बेसाख्ता अपने सीने पर हाथ रखा और मौतबाना लहजे में कहने लगा, आप हमसे रिक्वेस्ट ना किया करें, आप सिर्फ हुक्म किया करें। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। वो जान पूछकर उसे लश्कार रहा था क्योंकि यह आदमी बाद में उसके बहुत काम आने वाला था। अरे तैमूर साहब, आपकी इसी तरह की बातों से तो मैं आपका दीवाना हो गया हूं। आप हमारे बॉस हैं, लेकिन आपने कभी भी हमें यह महसूस नहीं होने दिया। वो भी उसी के अंदाज में बोला। मारिया जो कि बाहर खड़ी थी, ये बातें सुनकर उसका दिमाग गुस्से से घूम गया। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो नहीं जानती थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उस टेबल पर जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो तैमूर खानजादा के दुश्मन हैं जो उसकी कमजोरी के बारे में पता लगाना चाहते हैं। मगर इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी कोई उसकी कमजोरी जानने में कामयाब नहीं हो सका। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इस कदर घटिया इंसान हो सकते हो, वो चीखते हुए बोली। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। कुछ उसकी तरफ सताइश भरी नजरों से देख रहे थे, जबकि कुछ लोगों की नजरों में हैरत थी। आज से पहले उन्होंने इस हवेली में किसी किस्म की औरत नहीं देखी थी और ना ही वो तैमूर को इस तरह का आदमी समझते थे। तुम यहां पर क्या कर रही हो? अभी और इसी वक्त यहां से निकलो। वो गुस्से से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उसे बाहर जाने का इशारा किया। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मारिया, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, कमरे में जाओ, मैं तुमसे आकर बात करता हूं। उसने खुद पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो उसके किरदार पर वार कर रही थी और उसे उन सब लोगों के सामने जलील कर रही थी जिन पर वो हुक्म चलाता था। तैमूर, क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? इकराम साहब ने बेसाख्ता पूछा तो तैमूर ने उसको गर्दन से पकड़ लिया। जब किसी चीज के बारे में पता ना हो तो अपनी जबान को लगाम दिया करो। उसकी इस हरकत ने वहां पर बैठे सब लोगों को ही इशारा दे दिया था कि वो लड़की इसके लिए क्या हैसियत रखती है। सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। मारिया, जो कि उन सब लोगों को एक दूसरे में मगन देख चुकी थी, उसने जल्दी से पिस्टल उठा ली और तैमूर को धमकी देते कहने लगी, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं कसम खुदा की अपनी जान ले लूंगी। उसे इस इंसान से बहुत खौफ महसूस हो रहा था और उससे घिन आ रही थी। उसे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो उन लड़कियों की तरह तैमूर उसे भी दूसरे मुल्क स्मगल कर दे। एक लड़की के लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं होता। उसके लिए अगर उसे अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो देने से गुरेज नहीं करती। और मारिया का शुमार भी इसी तरह की लड़कियों में होता था। देखो, वो नीचे रख दो, वो खेलने की चीज नहीं है, तैमूर ने उसे छोटे बच्चों की तरह पिचकारते हुए कहा। मैं अच्छी तरह से जानती हूं, मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूं। ये कहने की देर थी कि वहां पर बैठे सब लोग हूटिंग करने लगे। तैमूर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि उसने किस तरह से अपने आप पर काबू रखा हुआ है, वरना आज से पहले तक उसने कभी किसी की फजूल बात बर्दाश्त नहीं की थी और वो उसी वक्त उसे सबक सिखा देता था। अगर वहां पर उसकी जगह कोई और खड़ा होता तो वो यकीनन उसे जान से भी मार सकता था, लेकिन अब उसके सामने उसकी कमजोरी खड़ी थी। देखो, वो नीचे रख दो, वो तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें नुकसान पहुंच जाए। वो बहुत ही मोहतात अंदाज में उससे मुखातिब था। उसके साथ साथ वो छोटे छोटे कदम बढ़ाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। खबरदार, जो तुम मेरे पास आए मैं गोली चला दूंगी, वो चीखते हुए बोली। उसकी हालत बहुत अजीब हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये इंसान इस कदर घटिया होगा उसने सोचा भी नहीं था। मारिया, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, वो नीचे रख दो, वरना तुम। मैं नीचे नहीं रखूंगी, वो फिर से चिल्लाते हुए बोली। और खबरदार, तुम मेरे करीब भी आए। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, पीछे खड़े गार्ड ने उसे बाजू से पकड़ा और झटका दिया। पिस्टल उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। तैमूर उसके सर पर पहुंच गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा।
वो इसके लिए तैयार नहीं थी। लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे अंदर दाखिल करने की? वो अब अपने गार्ड पर चिल्ला रहा था। साहब जी मुझे माफ कर दें, छोटी बीबी साहिबा कह रही थी कि अगर मैंने इन्हें अंदर ना भेजा तो आपको शिकायत लगा देंगी। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का? उसने बेसाख्ता अपने बालों में हाथ फेरा। इकराम साहब जो कि थोड़े फासले पर खड़े थे उससे मुस्कुराते हुए पूछने लगे, क्या तुम इससे मोहब्बत करते हो? आप लोगों का इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आप लोगों को यहीं पर इंतजार करें, मैं थोड़ी देर में आता हूं, फिर हम इस सिलसिले में बात करेंगे। सपाट अंदाज में कहता उसने मारिया को अपने बाजुओं में उठाया और उसे कमरे में ले गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे इस लड़की को लेकर खौफ महसूस हो रहा था। ये तुमने क्या किया मारिया? तुमने अपने साथ साथ मुझे भी एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। उसने इस लड़की के चेहरे को देखते बेचारगी से कहा। जब तक वो उसके दुश्मनों की नजर में नहीं थी तब तक वो पुरसकून था। तब तक वो जानता था कि मारिया की जिंदगी को भी खतरा नहीं है। मगर अब सब लोगों को मालूम हो गया था और ना जाने कितने लोगों को मालूम होने वाला था कि उसने अपनी हवेली में एक छोटी सी लड़की रखी हुई है जिस पर वो अपनी जान फिदा करने के लिए भी तैयार है। जब मारिया को होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में मौजूद थी। उसे रस्सियों से बांधा गया था। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। उसने अपने आप को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन गिरफ्त बहुत मजबूत थी। बेबसी से वो जोर जोर से हिलने लगी। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करना। उसे मर्दाना आवाज सुनाई दी। वो एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर जम गई और फिर जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी। उसे देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो कुछ बोलने की कोशिश करना चाहती है। तैमूर ने एक झटके से उसके मुंह पर से टेप हटाई। उसे दर्द का शदीद एहसास हुआ था मगर उसने अपने आप पर काबू रखा और नफरत से उसके चेहरे पर थूकते हुए कहने लगी, मुझे तुम जैसे इंसान से शदीद नफरत है। मैं तुम्हें अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी। तुम्हें किसी लड़की की इज्जत खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी। आखिर तुम इस कदर घटिया कैसे हो सकते हो? देखो लड़की, तमीज से बात करो। मैं तुम्हारे चचा या फुप्पा का बेटा नहीं हूं जो मुझसे इस तरह से बात करोगी। और मत भूलो कि इस वक्त तुम मेरी दस्तरस में मौजूद हो। मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूं। मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से खौफ महसूस नहीं होता। मुझे अपने रब पर यकीन है। मुझे पता है मेरा रब मुझे कभी रुस्वा नहीं करेगा। फिलहाल तो अपनी ये फजूल गोइयां बंद करो। मुझे बताओ कि तुमने हिम्मत भी कैसे की उस कमरे में दाखिल होने की? उसकी बातों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते वो उसकी आंखों में बराह रास्त देखते पूछ रहा था। उसके साथ ही उसने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की। सामने ही एक छोटी सी लड़की नजर आ रही थी जिसके आसपास 3 आदमी खड़े थे और वो चीख चिल्ला रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मारिया की छोटी बहन थी। क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो, मारिया डार्लिंग? तैमूर की बात सुनकर उसने बेसाख्ता सहमी हुई नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसे छोड़ दो प्लीज, उसे छोड़ दो। नहीं मेरी जान, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? जब तक कि उससे बदला नहीं ले लेता तब तक उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। देखो, मैंने तुम्हारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। तुमने जो करना है मेरे साथ करो। खुदा के लिए मेरी बहन को कोई तकलीफ ना पहुंचाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं। तुम जो कहोगे मैं वो करने पर तैयार हूं। मारिया बीबी, मैंने एक बार पहले तुम्हें वार्निंग दी थी और तुम्हें समझाया था कि मेरे मामलात से 100 फीट की दूरी पर रहना, मगर उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो तुम्हारी बहन का क्या हशर करता हूं। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। तैमूर किसी को जिस्मानी तकलीफ नहीं पहुंचाता था। वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ था। वो अगले इंसान को जहनी तकलीफ देता और इस काम में वो बहुत माहिर था, चाहे वो उसका अपना करीबी ही क्यों ना हो। तैमूर जानता था कि अब वो सारी रात इसी तकलीफ में गुजार देगी। उसका जहन हर पल अपनी बहन की तरफ ही लगा रहेगा। हजारों तरह के वहम और वसवसे उसे परेशान करते रहेंगे जिसकी वजह से वो बेचैन रहेगी। और तैमूर को यकीन था कि वो दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगी। वहां से बाहर निकलने के बाद उसने फोन उठाया।
इस लड़की को जहां से उठाया था वहां पर इज्जत से छोड़ाओ, उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचाना। जमाल इस वक्त वर्दा के करीब ही खड़ा था। वो 14 साल की एक मासूम सी लड़की थी, मगर वो अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी नजर आती थी। शायद ये उसके चेहरे की खदोखाल की वजह से था। तुम्हारी उम्र क्या है? वो घुटनों के बल उसके करीब बैठा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए प्यार से पूछने लगा। मैं 14 साल की हूं, उसने मासूमियत से जवाब दिया। या मेरे अल्लाह, जो लड़की मुझे पसंद आती है वो एक छोटी सी बच्ची क्यों निकलती है? ये बात उसने ऊंची आवाज में कही थी। वर्दा हमनक्कों की तरह उसके चेहरे को देखने लगी। क्या मतलब आपकी इस बात का? नहीं, कुछ भी नहीं। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूं। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप वाकई मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं? नहीं, मुझे लगा था मेरी बहन की तरह मुझे भी गायब कर दिया जाएगा, उसने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा। मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा, लेकिन 4 साल के बाद। आप उस वक्त क्यों मेरे पास आएंगे? आप मुझे फिर से अगवा कर लेंगे, वो उसी मासूमियत से बोली थी। जमाल को बेसाख्ता उस पर प्यार आ गया, मगर उसने खुद पर कंट्रोल रखना था। नहीं, उस वक्त तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेने के लिए आऊंगा। उस वक्त तुम्हें किसी भी किस्म की रिहाई नहीं मिलेगी और ना ही कभी तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा। मजबूत लहजे में वो ये बात करता उसे गाड़ी में बिठा चुका था। वो उसे उसके घर के सामने ड्रॉप करके गया। जब वो अपने घर के अंदर दाखिल हुई तो असद साहब बेचैनी से भागते हुए उसके पास गए और उसे अपने सीने से लगा लिया। करीब ही आमना बेगम रो रही थी, जिनकी एक बेटी पहले से लापता थी और दूसरी बेटी को भी न जाने किसने सुबह के वक्त घर से उठवा लिया था। अब उसको दोबारा से अपने सामने देखकर उनकी जान में जान आ गई। आप प्लीज छोड़ दें। आप ये सब कुछ आपकी वजह से आपकी अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में है। आप मेरा यकीन माने या ना माने, लेकिन ये सब कुछ आपके दुश्मन कर रहे हैं ताकि वो आपको डरा सके। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप उनकी नहीं मान रहे? देखो आमना, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जब इस फील्ड में आया था तब मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने मुल्क के साथ वफादार रहूंगा और अपने मुल्क के साथ किसी किस्म की गद्दारी नहीं करूंगा। उसके लिए मुझे अगर अपना पूरा खानदान भी कुर्बान करना पड़ा तो मैं कुर्बानी दे दूंगा। ये तो फिर एक बेटी है, उन्होंने बहुत ही मजबूत लहजे में कहा, जबकि आमना बेगम हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात से इस इंसान को देख रही थी जो अपने मुल्क के लिए हर हद से गुजरने के लिए तैयार था। काश मेरी कोई औलाद ना होती, उन्होंने चीखते हुए कहा। असद साहब ने उनकी बात की तरफ तवज्जो नहीं दी और कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि वो पीछे ऊंची ऊंची आवाज में चीखते हुए दुहाइयां देने लगी। काश मेरी कोई औलाद ना होती तो आज मुझे ये तकलीफ ना उठानी पड़ती। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दिल तो पत्थर का है। मुझसे पूछें, मैं एक माँ हूं, मेरा दिल हर वक्त खून के आंसू रोता है, हर वक्त अपनी बेटी के लिए बेचैन रहता है। न जाने वो कहां पर है, किस हाल में है, मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। ये कहकर वो सिसकने लगी और जमीन पर बैठती चली गई। असद साहब कमरे में गए और थके हुए अंदाज में अपने बिस्तर पर बैठे। उनके जहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तैमूर खानजादा का नाम गूंज रहा था, जिसने आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले उन्हें कॉल मिलाई थी और उनसे एक केस खत्म करने की बात की थी, जिसे सुनकर असद साहब ने साफ इनकार कर दिया था। ये काम उनकी ईमानदारी के खिलाफ था और वो कभी भी बेईमानी नहीं कर सकते थे। तब तैमूर खानजादा ने उन्हें धमकी देते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों का वक्त देता हूं। अगर 24 घंटों के अंदर तुमने वो केस खत्म ना किया तो मैं तुम्हारे साथ वो काम करूंगा जिसके बाद तुम मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे। गुस्से में आकर असद साहब ने जो काम 12 घंटों के बाद करना था वो काम उन्होंने उसी वक्त किया। जिस आदमी के खिलाफ वो केस था, उन्होंने ना सिर्फ उसे बहुत ज्यादा मारा बल्कि उसके साथ ही अगले दिन कोर्ट में उसकी सुनवाई रखवा दी। उनको अपने सीनियर ऑफिसर से थोड़ा सा फायदा मिला हुआ था।
उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनके ऊपर जो सीनियर ऑफिसर था वो भी ईमानदार था और वो भी अपने काम को इबादत समझकर करता था और उसमें किसी भी किस्म की कोताही नहीं करता था। यही वजह थी कि आज तक उन्होंने जो भी केस ईमानदारी से लिया, कोई भी उनके खिलाफ नहीं गया था। न जाने उनके जहन में क्या आया, उन्होंने उसी नंबर पर कॉल मिलाई जिस नंबर से 2 हफ्ते पहले कॉल मौसूल हुई थी। उस वक्त तैमूर नहाकर फ्री हुआ था और अब शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था, जबकि मारिया बिखरी हुई हालत लिए उसके पीछे बैठी हुई थी और उसे खून ख्वार नजरों से देख रही थी। पिछली पूरी रात उसने रोते चीखते गुजारी, अपनी बहन के लिए दुआएं करते गुजारी थी। इस तरह से मुझे ना देखो वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो नफरत से जमीन पर थूकते हुए कहने लगी, तुम जैसे इंसान से सिर्फ और सिर्फ नफरत हो सकती है, मोहब्बत नहीं। इतने बड़े बड़े बोल इंसान को नहीं बोलने चाहिए, बाज औकात इंसान को पछताना पड़ता है। यह भी तो हो सकता है तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओ और तुम्हें मेरे अलावा कोई नजर ही ना आए। वो जैसे उसका मजाक बना रहा था या फिर वो सीरियस था, मारिया इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई। उसी वक्त तैमूर का फोन बजा। सामने नजर आने वाले नंबर को देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। फोन पर सुसर साहब जगमगाता हुआ नजर आ रहा था। देखो, तुम्हारे बाप की तरफ से मुझे कॉल आ गई है, मगर मुझे हैरत है उसने इतनी देर से मुझे फोन क्यों किया। उसे तो बहुत पहले मुझे कॉल कर लेनी चाहिए थी। अपने बाप के बारे में सुनकर वो तेजी से उठी और भागती हुई उसके पास आई। वो उसके हाथ से मोबाइल लेना चाहती थी कि तैमूर ने जल्दी से अपना हाथ बुलंद कर लिया। वो अब छोटे बच्चों की तरह उछल रही थी और उसकी मिन्नतें कर रही थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए कभी अपना फोन एक हाथ में लहराता तो कभी दूसरे हाथ में लहराता। उसे ना जाने क्यों मारिया को तंग करते बहुत मजा आ रहा था। थक कर वो वहीं छोटे बच्चों की तरह जमीन पर बैठ गई और टांगे जोर जोर से हिलाते हुए कहने लगी, तुम बहुत ही ढीठ इंसान हो। सुनो लड़की, सोच समझकर बात किया करो। मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूं, मुझसे बदतमीजी ना किया करो। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, तैमूर ने उसको आंखें दिखाई तो वो फौरन से सीधी हो गई। माफ कर दो, गलती हो गई, उसने मुंह बनाते बहुत ही अजीब अंदाज में कहा था। तैमूर जितना मर्जी जालिम सही, उसे जितनी मर्जी ज़हनी अजियत क्यों ना देता, मगर आज तक उसने कभी मारिया की इजाजत के बगैर उसे हाथ नहीं लगाया था, बल्कि उल्टा वो उसका ख्याल रखता और कोशिश करता था कि उसे किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। रात के वक्त मारिया आधी नींद में थी और आधी जाग रही थी जब तैमूर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने बहुत ही आहिस्तगी से उसके हाथ और पांव खोले और फिर जिस जगह पर निशान थे उसने उन जगहों को चूमा। बहुत ही एहतराम और प्यार के साथ उसे अपने बाजुओं में उठाया और उसे कमरे में लेकर गया। बिस्तर पर लिटाने के बाद उसने मारिया के ऊपर कंबल दुरुस्त किया और उसके माथे पर बोसा देते हुए बहुत ही प्यार से बोला, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुम्हें मैं किसी कीमत पर नहीं खो सकता। मारिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इस वक्त जाग रही थी और अपने पूरे होशो हवास में थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े इस जालिम इंसान को देख सकती। दूसरी तरफ उसके कांपते हुए होंठों को देखकर वो भी अंदाजा लगा चुका था कि उसकी सारी बातें वो छोटी सी लड़की सुन चुकी है। उसने मारिया को मजीद तंग करना जरूरी नहीं समझा और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो अपनी जगह पर उठ बैठी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। आखिर वो इंसान मुझसे चाहता क्या है? उसने हमेशा की तरह खुद से सवाल किया, मगर वो इसका जवाब कभी भी तलाश नहीं कर सकती थी जब तक कि तैमूर खानजादा अपने मुंह से ना बोल देता। चीख चीख कर फोन बंद हो गया। वो बेचारगी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। सिर्फ एक बार मेरी बाबा से बात करा दो, मैं तुमसे वादा करती हूं फिर तुमसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी। वो मासूम चेहरा बनाते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। तुम्हारे वादे भी चाइना की तरह होते हैं, हर बार ही मुझसे वादा करती हो और हर बार तोड़ देती हो।
तुम्हारे वादे ज्यादा देर तक नहीं चलते। शर्म की वजह से उसके गाल लाल हो गए थे, मगर जानती थी कि फिलहाल जवाब देने का और बदतमीजी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका काम सिर्फ तैमूर खानजादा ही कर सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारी बाप से तुम्हारी बात करवाने को तैयार हूं। उसने दोबारा से नंबर डायल किया। दूसरी जानिब असद साहब ने जल्दी से कॉल उठा ली। बाबा, आप कैसे हैं? अपनी बेटी की आवाज सुनकर उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके जलते हुए दिल पर ठंडी फुहार डाल दी हो और उनके दिल को यकदम सुकून आ गया हो। मेरा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम मुझे बताओ, तुम कैसी हो और इस वक्त कहां पर हो? बात करते करते वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अब उनका रुख घर से बाहर की तरफ था। दूसरी तरफ तैमूर खानजादा उनकी सारी चालें समझता था। वो इस पुलिस वाले की रग रग से वाकिफ था। वो उसके जज्बात के साथ खेलना चाहता था और उसे भी ज़हनी तकलीफ पहुंचाना चाहता था। तैमूर खानजादा ने आज जानबूझकर वो नंबर और वो सिम ऑन की थी। वो देखना चाहता था कि असद साहब किस हद तक जा सकते हैं, और उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उनका रुख अब पुलिस स्टेशन की तरफ था। वो जल्द अज जल्द वो नंबर ट्रेस करना चाहते थे। रास्ते में ही उन्होंने अपने दोस्त को कॉल मिलाई और उसे वो नंबर लिखवाया। उसके साथ ही वो फोन बंद हो गया। तैमूर ने जल्दी से उसके हाथों से मोबाइल लिया और फोन बंद करके उसे अपने नौकर की तरफ उछालते हुए बोला, इसे किसी वीरान जगह पर फेंकाओ, लेकिन फेंकने से पहले मोबाइल ऑन करना। जी साहब जी, मैं ऐसा ही करूंगा। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकला। मारिया गुस्से से तैमूर की तरफ पलटी और चीखते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने बाबा से बात कर रही थी। अगर तुम मजीद थोड़ी देर बात करती रहती तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर यहां पर पहुंच जाते, और मैं कैसे अपनी प्यारी सी होने वाली बेगम को उस इंसान के हवाले कर सकता हूं? वो मोहब्बत भरे अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मारिया के दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगी, जिससे उसने फौरन ही संभाला और नजरें झुकाते हुए बोली, मेरे साथ फजूल बातें ना किया करो। तैमूर एक गहरी सांस लेकर पीछे हटा और बोला, कुछ भी नहीं। हम बहुत जल्दी यहां से जा रहे हैं। क्या मतलब है? हम कहां पर जा रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अब अपने बाबा के पास वापस जाना है। वो फिर से चिल्लाई, क्या तुमने 8 करोड़ इकट्ठे कर लिए हैं? एकदम ही वो खामोश हो गई। क्या तुम मुझ पर एक एहसान नहीं कर सकते? देखना अल्लाह ताला तुम्हें कयामत के दिन इसका कितना बड़ा अजर देंगे। मगर मुझे तो वो अजर दुनिया में चाहिए और तुम्हारी सूरत में चाहिए। अगर तुम मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो जाओ तो मैं तुमसे वादा करता हूं वो सारे पैसे माफ कर दूंगा और तुम्हारे वालिद को भी इस केस से बाहर निकाल दूंगा। अपने बाप का नाम सुनकर उसने बेसाख्ता उसके चेहरे की तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कौन से केस की बात कर रहे हो? मेरी प्यारी जान, उसी केस की बात कर रहा हूं जिसमें तुम्हारे बाप को मैं फंसाने वाला हूं और उसे सजाए मौत भी हो सकती है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो बेसाख्ता चिल्लाई थी। तुम जानती हो मैं कुछ भी कर लेने की सलाहियत रखता हूं, इसलिए चीखने चिल्लाने का तो कोई फायदा नहीं। मैं तुमसे ये बात बहुत सीधे अंदाज में करना चाहता था, मगर अब मुझे पता चल गया है कि तुम सीधे अंदाज में बात सुनने की कायल नहीं हो। इसलिए अपने छोटे से दिमाग को समझा लो कि अगर तुमने मुझसे निकाह नहीं किया तो मैं तुम्हारे बाबा को जलील और रुस्वा कर दूंगा। उसने रानी को आवाज दी तो वो तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हो गई। बीबी साहिबा को उनके कपड़े दिए जाएं और इसके अलावा वो सारी ज्वेलरी भी इसे पहना दो जो मैं खास इटली से लाया था। और ये एक हैरत अंगेज काम था जो उसने अपनी सारी जिंदगी में किया था। मारिया से मिलने से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही वो जरूरी काम के सिलसिले में इटली गया था। सब गैंगस्टर्स की मीटिंग थी। वहां वो एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा था जब उसकी नजर ब्राइडल ज्वेलरी पर पड़ी थी। वो ज्वेलरी उसे बहुत प्यारी लगी। हीरों से बना वो सेट उसे पहली ही नजर में भा गया था। उसने जमाल को वहीं रुकने का कहा और खुद उस दुकान के अंदर दाखिल हो गया। हैरानगी के आलम में वो भी अपने साहब के पीछे ज्वेलरी की शॉप में चला गया। उसने सेल्समैन को वो सेट पैक करने को कहा
तो जमाल हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछने लगा, साहब ये आप किसके लिए ले रहे हैं? जहां तक आपने मुझे बताया है और जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपको तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी नहीं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, तैमूर खानजादा ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। मुझे ये पसंद आ गई है और मेरा लेने का दिल कर रहा है, बस बात खत्म। जरूरी तो नहीं कि इंसान कोई चीज उसी वक्त ले जब उसे किसी को देनी हो। इंसान अपनी खुशी के लिए भी तो ले सकता है। जमाल का दिल कर रहा था वो उसका मजाक बनाए। उसके जहन में इस वक्त बहुत से चुटकुले आ रहे थे, मगर वो जानता था कि तैमूर खानजादा गुस्सा कर जाएगा, इसीलिए खामोश हो गया। मगर उसके चेहरे से मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं हो रही थी। जब वो दोनों बाहर निकले तो तैमूर उसे घूरते हुए पूछने लगा, ये तुम किस खुशी में मुस्कुरा रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ, मुझे भी पता चले आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना मसरूर कर दिया है। उसका लहजा तीखा और तंजिया था। अरे साहब, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर मैं चुप रहूं तब भी आप मुझे डांटते हैं, और अगर हंसूं तब भी आप मुझे डांटते हैं। जमाल ना सिर्फ उसका बचपन का दोस्त था, बल्कि उसके स्याहो सफेद में हमेशा उसके साथ होता था। उसकी बात सुनकर तैमूर कुछ भी ना बोला। जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे इस वक्त घर जाना है। आज जब जमाल ने तैमूर को वो सेट उठाए देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, साहब जिसके लिए आपने लिया था, आखिर वो इंसान आपको मिल ही गया। तैमूर भी अब की बार मुस्कुरा दिया। थोड़ी ही देर के बाद उसे तैयार कर दिया गया। मारिया आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। आज से पहले तैमूर ने इस कदर पाकीज़ा और मासूम हुस्न कभी नहीं देखा था। ऊपर से उसकी रोने की वजह से लाल आंखें और छोटी सी लाल नाक किसी का भी ईमान डगमगाने की हैसियत रखती थी। रोकर तुम अपने ऊपर नहीं बल्कि मुझ पर जुल्म कर रही हो, तैमूर ने प्यार से उसके आंसू साफ करते हुए कहा तो वो शिकायती नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मुझे आपसे शदीद नफरत है। ये बात मैं जानता हूं, मगर जल्द ही तुम्हारी ये नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। यह भी हो सकता है कि फिर उस वक्त तुम मुझसे नफरत करने पर पछताओ। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं घटिया इंसानों से नफरत करने पर कभी नहीं पछताती, बल्कि मैं उन इंसानों को अपनी जिंदगी से बहुत दूर कर देती हूं जो लोग मुझे तकलीफ देते हैं। मैं उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ देती हूं। छोटी सी लड़की, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। बाज़ औक़ात इंसान को अपनी बड़ी बातों का भी हिसाब चुकाना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो तुम वो हिस्सा भी ना चुका पाओ। प्यार से उसके सर के बाल खराब करता एक बार फिर से वो बाहर चला गया। उसके सिर्फ चंद ही रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसका निकाह पढ़ा दिया गया। मारिया ने भी ना चाहते हुए कबूल है कि हामी भर ली, और उसके साथ ही वो मारिया असद खानजादा से मारिया तैमूर खानजादा बन गई। उसके नाम के साथ ऐसे शख्स का नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया जिसको वो नफरत की निगाह से देखती थी। या अल्लाह, मैं सारी जिंदगी इसके साथ कैसे गुजारूंगी, उसने बेसाख्ता खुद से कहा था। उस दिन तैमूर बहुत खुश था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसे जिंदगी की तमाम खुशियां मिल गई हों। अपने दोस्तों को रुखसत करने के बाद जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसे अपनी सांस रोकती हुई महसूस हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने अपने आप को कहते सुना था। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था, जबकि उसके गार्ड जमीन पर जख्मी पड़े हुए थे। अचानक से उसे कराहती हुई आवाज सुनाई दी। वो तेजी से गया जहां पर जमाल जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसने मजबूती से तैमूर का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दीजिए साहब, अपनी छोटी बीबी साहिबा को नहीं बचा पाया। वो जलील इंसान छोटी बीबी को ले गया है। वो टूटे फूटे अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा था। तैमूर ने उसे फौरन खामोश कराया और उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिलहाल उसे सबसे ज्यादा फिक्र जमाल की थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था और जिसके बलबूते पर ही वो आज इस मुकाम पर पहुंचा था।
साहब जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने हमेशा आपके साथ वफादारी की है और आपका वफादार बनकर ही मर रहा हूं। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी का और कोई मुकाम नहीं। तुम मुझे बताओ, ये सब कुछ तुम लोगों के साथ किसने किया? तैमूर ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। वलीद खानजादा यहां पर आया था। तैमूर का बस नहीं चल रहा था वो उस इंसान का हशर नशर कर दे। अब तुम देखो मैं उसके साथ क्या करता हूं। वो अपने इस कारनामे की बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। उसे क्या लगता है मैं कभी उसे तलाश नहीं कर पाऊंगा? वो नहीं जानता उसने किससे पंगा ले लिया है। कल दिन के वक्त ही तो उसने एक मामूली सी चूंटी जैसी डिवाइस मारिया की गर्दन में फिट की थी, जिसके बाद वो दर्द से बिलबिला उठी थी और उससे चीखते हुए कहा था कि तुमने मेरी गर्दन के साथ क्या किया है? तो वो मुस्कुराते हुए बोला था, तुम कभी भी मुझसे जुदा नहीं हो पाओगी। ये वही ट्रेसिंग डिवाइस थी जो आज उसके काम आ रही थी। उसने पुलिस स्टेशन में कॉल मिलाई और उसके साथ ही एक भारी नफरी भी मांगी। आज उन्होंने हर हाल में वलीद खानजादा के अड्डे पर पहुंचना था और उसका काम तमाम करना था। वो पहले भी बहुत सारी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस था। जब वो वहां पर पहुंचा तो असद साहब पहले ही पुलिस की नफरी के साथ खड़े थे। उसको अपनी जानिब आता देखकर उन्होंने जल्दी से पिस्टल निकाली। इससे पहले कि वो उस पर फायर करते, करीब खड़े ऑफिसर ने उन्हें रोकने का इशारा किया और उन्हें डांटते हुए कहा, यह आप क्या कर रही हैं? सर, तैमूर खानजादा पर पिस्टल निकालने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? तैमूर ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और अपने ससुर साहब की आंखों में देखते हुए बोला, बहुत जल्द आपको सारी हकीकत के बारे में बता दूंगा। फिलहाल हमारे लिए जरूरी उस इंसान को पकड़ना और आपकी बेटी को जिंदा सलामत उसके चुंगल से निकालना है। असद साहब समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। कुछ अरसा पहले तैमूर खानजादा उनसे एक गुंडे की सूरत में मिला था और आज वो एक पुलिस ऑफिसर के लिबास में मौजूद था। वलीद खानजादा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो लोग इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यहां से निकलना था। उसने अपने एक आदमी को हिदायत कर दी थी कि वो यहां से निकलने से पहले उस लड़की को जान से मार दे, मगर वो आदमी खुद ही एक झड़प में मारा गया। मारिया उस वक्त डरी सहमी कमरे में बैठी थी। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जब उसने तैमूर खानजादा को उस इमारत के अंदर दाखिल होते देखा तो वो भागती हुई उसके पास गई और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसको एकदम से ही तहफ्फुज़ का एहसास होने लगा था। तैमूर ने प्यार से उसके माथे पर बोसा दिया और उसे तसल्ली देते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और फिर उस दिन मारिया पर और असद खानजादा पर यह राज आश्कार हुआ था कि तैमूर सीक्रेट एजेंसी की फोर्सेस में एक काबिल ऑफिसर था जो पिछले 5 सालों से वलीद खानजादा के केस में उलझा हुआ था और उसके लिए उसने अपना नाम, अपना रूप, सब कुछ तब्दील कर लिया था। जहां तक उसकी फैमिली का सवाल था तो वो एक पठान और रिवायती फैमिली से ताल्लुक रखता था, मगर किसी को भी आज तक उसके खानदान के बारे में मालूम नहीं हो सका। उसने अपने खानदान को अपनी जॉब से बहुत दूर रखा हुआ था। उसके वालिदैन और बहन भाई पेशावर के कबीले में रहते थे। उसका बाप अपने कबीले का सरदार था, मगर चूंकि उसे इस सरदारी से कोई लगाव नहीं था, वो अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता था। इसीलिए वो अपना गांव छोड़कर शहर आ गया और ये नौकरी शुरू कर दी। आज वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करने में कामयाब हो गया था। जब उसे स्टेज पर अवार्ड मिल रहा था तो उसके लिए तालियां बजाने वालों में सबसे पहला नंबर असद खानजादा का था। वो इस इंसान से नाराज थे क्योंकि इस इंसान ने उन्हें बहुत तंग किया था और उसके लिए अगर वो चाहते तो वो उस पर केस कर देते, मगर मारिया ने मना कर दिया था। अब वो तैमूर के निकाह में थी और उसे इस शख्स से मोहब्बत भी हो गई थी। उसने अपने बाप की मिन्नतें की थी कि खुदा के लिए उसे कोई नुकसान न पहुंचाइएगा। अगर आप उसे तकलीफ पहुंचाएंगे तो मुझे तकलीफ होगी। इसीलिए बेटी की खुशी की वजह से वो खामोश हो गए। वो अवार्ड लेकर आया और मारिया के हवाले करते कहा,
یہ میرا نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ اگر تم مجھے جوش نہ دلاتی تو میں کبھی بھی اس پر یوں اچانک حملہ نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کر وہ کھل کر مسکرا دی اور اپنا سر تیمور کے سینے پر ٹک